Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And in this lecture now we are going to discuss about the mechanism of absorption of all the digested food. In our previous lecture we have discussed about the physiology of digested food and we have learned what are the end products of different type of nutrient, like carbohydrate has been eventually digested into galactose, glucose and fructose. Proteins has been digested into amino acids. Fat has been digested into monoglyceride, fatty acid and glycerol, and nucleic acid has been digested into nitrogen bases and that pentose sugar. So in this lecture we are going to discuss what is absorption, what is site of absorption, what are the mechanism of absorption, and how different nutrient has been absorbed and where they have been absorbed. So title of the lecture would be absorption of digested food, that whatever the end products of digested food we have made in our alimentary canal, how these different products has been absorbed. First we will be starting with the definition. See, digestion is completed in the lumen of alimentary canal, and the transfer of digested food from the lumen of alimentary canal to a circulatory system. That circulatory system could be blood vessel or that circulatory system could be lymphatic system. The transfer of digested food into the circulatory system is simply referred as to absorption. So what I am teaching you, let's say this is a lumen of alimentary canal. Most precisely this is the lumen of intestine. We have discussed that final digestion occurs in small intestine, whereas there are certain products which are present in stomach and other part as well. From the lumen of alimentary canal there can be two type of blood vessel, which I am going to represent in red are blood capillaries, and the one which I am going to represent in green here are lymphatic capillaries. So a easy way to distinguish between both, that the lymphatic capillaries are blindly ended and blood capillaries are open at both ended. So transfer of that digested food from that lumen to blood circulatory system as well as to lymphatic system, lymph capillaries, is referred as to absorption. So if I write the definition here, absorption refers to transfer of digested food to blood capillaries or lymphatic capillaries is simply referred as to lymphatic capillaries is simply referred as to absorption. See, we used to learn two different terms. One is absorption and second is reabsorption. Reabsorption always occurs in our nephron, in our kidney, in our nephron. Certain nutrient, water, salt has been reabsorbed. And absorption always occurs in GIT, gastrointestinal tract. So whatever the end product of digested food has been produced in the lumen of alimentary canal, those end product has been transferred to circulatory system. That could be blood vessel, that could be lymphatic vessel, and that process, that mechanism is referred as to absorption. That's clear, very simple. Now major site of absorption, you will remember that approx 90% of absorption occurs in small intestine and rest 10% occur in mouth, stomach and large intestine. So major site of absorption is small intestine. And which part of small intestine has maximum villi along with microvilli? Your answer must be jejunum. So in jejunum part the major part of absorption is occurring, and that is up to 90% of the absorption occurs in small intestine. Rest 10% occurs, I will be referring here mouth, stomach and large intestine
is also involved in the absorption of certain drug, simple monosaccharides, alcohol, drug like aspirin, and vitamin, mineral and water. We'll be learning that ahead. So major site of absorption in our body is small intestine, and absorption is the transfer of nutrient from lumen of alimentary canal to the circulatory system. नाउ जब एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे बच्चों तो हमें अलग अलग मैकेनिज्म पढ़नी होगी. अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, there are different ways by which this food has been transferred. The most simplest way to transfer food is simple diffusion, and simple diffusion occurs on the basis of concentration gradient. I mean to say, एक ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से एक कम कंसंट्रेशन वाले एरिया में मटेरियल का ट्रांसफर हो जाएगा. तो ज़्यादा कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट की रहेगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन में, और कम कंसंट्रेशन रही होगी हमारी ब्लड के अंदर या लिम्फेटिक वेसल के अंदर. तो जब विद रेफरेंस टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, without the use of any energy or without the use of any special mechanism, food has been simply transferred, we call it simple diffusion. So simple diffusion take place with accordance to concentration gradient, and from a region of high concentration to a region of low concentration, food has been transferred. It does not require any energy. Second way, okay, we used to learn that there are two type of transfer. जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. तो सिंपल डिफ्यूजन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो फन इन टेलिंग. That one which requires energy we call that एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी इज रिक्वायर्ड और ट्रांसपोर्ट मेजरली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. एज ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हुआ तो एक्टिव, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फ्लो के थ्रू हुआ तो पैसिव या सिंपल डिफ्यूजन. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का होता है. अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर डिफाइन करूं, इट इज ऑफ टू टाइप. एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेसिक कंसेप्ट ये होता है बच्चों के, जब बाय यूज ऑफ एटीपी कोई भी मटेरियल ट्रांसफर होता है, एटीपी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके कोई भी जब मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो उसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रीजन है ए और दूसरा रीजन है बी, और ए से बी की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है. लेट्स से सोडियम आयन ट्रांसफर हो रहा है, और जो भी एनर्जी यूज हो रही है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी हो रही है. तो इस ट्रांसपोर्टेशन को बोलेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. अब ज़्यादा सोडियम इधर हो जाएंगे और कम सोडियम इधर हो जाएंगे, और इन मिनरल आयन की वजह से जो एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, आई रिपीट, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अ एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स. और बाय यूजिंग दैट एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, लेट्स से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेकेंडरी. तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है दैट कम फ्रॉम ग्रेडियंट डेवलप्ड ड्यू टू प्राइमरी एक्टिव, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पे टू बी वेरी स्पेसिफिक, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन. तो भाई प्राइमरी एक्टिव से मिनरल ट्रांसपोर्ट हुए, और उन मिनरल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एक एनर्जी ग्रेडियंट आ गया,
और उस एनर्जी ग्रेडियंट का जो एनर्जी है, उस एनर्जी ग्रेडियंट में से जो एनर्जी है वो यूज करके जब कोई चीज ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब मैं आगे बताऊंगा आपको ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड बाय एक्टिव, और अगर सवाल पूछ लेता है कि वो प्राइमरी एक्टिव है सेकेंडरी एक्टिव है, तो आंसर वुड बी सेकेंडरी एक्टिव। सोडियम इज आल्सो ट्रांसफर्ड बाय एक्टिव, दैट इज प्राइमरी एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव, आंसर वुड बी प्राइमरी एक्टिव। तो बेसिक कंसेप्ट इज दैट अगर एटीपी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है तो वो प्राइमरी एक्टिव, और अगर एनर्जी ग्रेडियंट डेवलप ड्यू टू प्राइमरी एक्टिव, वो एनर्जी ग्रेडियंट यूज होता है तो सेकेंडरी एक्टिव। तो इट कुड बी द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुड बी सिंपल डिफ्यूजन, इट कुड बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक और आपको मैं पैसिव बता देता हूं जिसको बोलते हैं फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव होते हैं। अटेंशन प्लीज, फैसिलिएटेड और सिंपल डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव होते हैं। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। अब फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट में एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है। विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल कैरियर प्रोटीन विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी जब कोई चीज ट्रांसफर होती है तो उसको फैसिलिएटेड कहते हैं। दिस इज फैसिलिएटेड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटीन। फैसिलिएटेड का मतलब यहां पे हेल्प हुआ। तो जब ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन हो रहा है तो फैसिलिएटेड, ये भी पैसिव होगा। विदाउट एनी प्रोटीन हो रहा है पैसिव तो सिंपल डिफ्यूजन, विदाउट एनी प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन फैसिलिएटेड, और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एक्टिव। तो तीन अलग अलग मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इट वुड बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट कुड बी सिंपल डिफ्यूजन, इट वुड बी फैसिलिएटेड। मोर एवर ऑस्मोसिस आल्सो कैन टेक प्लेस, और वाटर जो रीअब्सॉर्ब होगा वो ऑस्मोसिस से ही होगा, और आई डोंट थिंक आपको ऑस्मोसिस बताने की जरूरत है अभी यहाँ पर। तो पहला कंसेप्ट था व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ट्रांसफर हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और एब्जॉर्प्शन किस किस मैकेनिज्म से होता है, दैट वुड बी सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन भी कह दें आप इसको। और फैसिलिएटेड और सिंपल जो है दोनों ही पैसिव होते हैं, बस फर्क ये होता है कि फैसिलिएटेड के अंदर आपको एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है और सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होता। ठीक है बच्चों यहां तक। अब ना एक बहुत ही रफ सा डायग्राम बना देता हूं मैं एलिमेंट्री कैनाल का, और क्या क्या चीज कहां एब्जॉर्ब होगी वो बता के फिर वन बाय वन न्यूट्रिएंट वाइज जो भी एंड डाइजेस्टरी प्रोडक्ट थे वो न्यूट्रिएंट वाइज कैसे कैसे एब्जॉर्ब होते हैं वो मैं मेंशन करता चला जाऊंगा, और वो आप याद भी रखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस हेयर इज बक्कल कैविटी, और जो ये बक्कल कैविटी है आपका, इस बक्कल कैविटी से आपके ब्लड सर्कुलेशन में देयर आर सर्टेन ड्रग्स which has been directly put under your tongue and they have been absorbed in the buccal cavity. There are certain होती ना कुछ दवाइयाँ जिनको आप डिज़ाइन करते हैं कि भाई वो ज़बान के नीचे रख लें और वहीं से वो एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो certain drugs can be absorbed in the blood circulation in buccal cavity. फिर आपके पास आता है बच्चों ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, so there is no absorption in esophagus. ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। थोड़ा आगे चल के आप ये भी पढ़ सकते हैं कि सम ऑफ द वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब्ड इन इसोफेगस, तो वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, तो हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। फिर आपके पास आ जाता है बच्चों यहाँ पे इसोफेगस वुड बी ओपनिंग इनटू व्हाट, स्टमक, राइट। और स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, स्टमक का भी जो कंटेंट है दैट वुड बी एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड वेसल ओनली। लेट्स से दीज आर द ब्लड वेसल्स हियर एज वेल। और स्टमक के अंदर वाटर, सर्टेन ड्रग लाइक एस्प्रिन, some alcohol, see stomach wall is very permeable to alcohol, and few monosaccharide like glucose, few monosaccharide like glucose। और सिंपल शुगर अगर मैं बोलूं तो सिंपल शुगर
alcohol, drug like aspirin and water is absorbed in stomach. फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेफर्ड एज टू ड्यूडेनम, और जो ड्यूडेनम होता है दैट इज परमिएबल टू सर्टेन मिनरल आयन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूडेनम में आपका जितना भी आयरन होता है वो एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम के अंदर, और जो कैल्शियम होता है वो एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम के अंदर। सो आयरन एंड कैल्शियम बोथ गेट एब्जॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम। फिर आपके पास जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगा डेट वुड बी इन जेजुनम, और जेजुनम के अंदर अभी फॉर द मीन टाइम आप ये याद रख लें कि इन जेजुनम ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल एज वेल एज जो ब्लड कैपिलरीज एज वेल एज जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है, दोनों के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सारे न्यूट्रिएंट यहीं पे एब्जॉर्ब होंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो आपका इलियम वाला पार्ट आ जाएगा, इलियम इज परमिएबल टू सर्टेन वाइटामिन लाइक वाइटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट। तो जो बाइल सॉल्ट्स हैं, जो भी बाइल आया होगा, कुछ यूज हो गया ड्यूडेनम में, जो बाकी का बचा है इट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड वाइटामिन B12 ये होता है आपका इलियम में। और जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, अगर मैं कॉलोन की बात करूं, यहां पर कॉलोन के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा वाटर, मिनरल एंड सर्टेन वाइटामिन। इन कॉलोन देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन वाइटामिन। तो वाइटामिन B12 यहां भी होता है, बताएंगे अभी कैसे कैसे होगा, राइट। और कॉलोन के बाद आपके पास रेक्टम वगैरह आ जाएगा जहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन होगा, एंड देन एनस वुड बी देयर। तो अगर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, बाद में मैं टेबल भी बना दूंगा कि कहां पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, एनसीईआरटी में जो मेंशन होगा। बक्कल कैविटी के अंदर कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं, वो डिजाइंड होते हैं टू पुट इनसाइड द टंग। फिर इसोफेगस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। स्टमक के अंदर सिंपल शुगर, अल्कोहल, सर्टेन ड्रग लाइक एस्पिरिन और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ड्यूडेनम इज वेरी वेरी परमिएबल फॉर आयरन एंड कैल्शियम। जेजुनम इज मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड इलियम के अंदर होता है बाइल सॉल्ट एंड वाइटामिन B12। और जो कॉलोन वाला पार्ट है उसके अंदर वाटर, माने लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, उसके अंदर वाटर, मिनरल एंड सर्टेन वाइटामिन होंगे। तो वन बाय वन मैं बता देता हूं आपको न्यूट्रिएंट वाइज, फिर बाद में ये जो बनाया है डायग्राम, इसका एक चार्ट बना लेंगे। अगर न्यूट्रिएंट वाइज बात करें, वो ज्यादा आसान होगा हमें याद रखना भी कि भाई हम न्यूट्रिएंट वाइज पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट किस किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हुए हैं और कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, प्रोटीन आई मीन टू से अमाइनो एसिड किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और आपके फैट, वाटर और बाकी मिनरल्स, वाइटामिन किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों पहले पढ़ते हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और व्हेन आई से कार्बोहाइड्रेट, आई एम वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मोनोसैकेराइड। अब आप ये याद रखेंगे, ये ऑल 3 मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं। व्हाट आई मीन टू से, कुछ मोनोसैकेराइड एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से कब होंगे, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है और मैं कुछ खाता हूं तो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। देन कौन सा होता है सिंपल डिफ्यूजन से, मैं ये भी लिख देता हूं, लाइक ग्लूकोज। उसके बाद आप याद रखेंगे मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहां पर, आंसर वुड बी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आंसर वुड बी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
सेकेंडरी नहीं भी याद रहेगा तो कोई इशू नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद रख लेना। एंड सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज and all of the amount of fructose and all fructose is also reabsorbed by facilitated diffusion or facilitated transport. Okay, see what I told you. एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड की जब बात करेंगे कहां कहां पर होता है, पहले तो ये याद रखना ये कहां होता है। दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरीज। जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। फिर आपने अभी पिछले वाले चार्ट में पढ़ लिया कि फ्यू सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब्ड in stomach and majority are absorbed in jejunum or ileum. I hope you said jejunum here. That is small intestine. जब कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे बच्चों तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होता है। कुछ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होता है। कुछ सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मेजॉरिटी जेजुनम में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर ये मेरे पास ब्लड सर्कुलेशन है, दिस इज माय ब्लड सर्कुलेशन हियर एंड दिस इज माय ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट आपको बताए थे मैंने पिछले लेक्चर में, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और ऑब्वियसली यहां पर एक सेल होगा जिसके लिए हम एंट्रोसाइट वर्ड यूज करेंगे। ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन के बाद दिस सेल हियर लेट्स से इज एंट्रोसाइट। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज गोज बाय सिंपल डिफ्यूजन, फ्रक्टोज ओनली एंड ओनली गोज बाय a special carrier protein is present here and that special carrier protein help in the transfer of fructose। तो ये कैसे हो जाएगा? By facilitated। Some of the glucose is also going via carrier proteins। Some of the glucose is also going via carrier protein। तो कुछ ग्लूकोज भी फैसिलिटेटेड से हो गया। And majority of glucose and all of galactose is going via active transport। ठीक है बच्चे। फिर एक सवाल आता है, सबसे ज्यादा क्विकली कौन एब्जॉर्ब होता है? तो आंसर वुड बी गैलेक्टोज, सेकंड ग्लूकोज एंड थर्ड फ्रक्टोज। एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। कुछ मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सारा का सारा गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और कुछ ग्लूकोज और सारा फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर मैं लेट से आपको बताता हूं, दिस प्रोटीन हियर इज एक्चुअली GLUT5। ये वैसे तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की ही कैटेगरी में आता है, पर फ्रक्टोज इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, यू बेटर नो कि भाई उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फार्मूला सेम होता है। तो जो कैरियर प्रोटीन है वो फ्रक्टोज को एनेबल कर देता है टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ल्यूमन टू ब्लड वेसल। तो पहला पार्ट जो आप मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फिर से आप याद रख लेना कि जितने भी मोनोसैकेराइड है वो सारे के सारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। मोनोसैकेराइड दो जगह ही एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ सिंपल मोनोसैकेराइड, जैसे मैं कुछ खाने में ना ग्लूकोज ही खा रहा था पाउडर फॉर्म में, तो उसको मैंने डाइजेस्ट नहीं किया, वो प्री डाइजेस्टेड था, तो स्टमक में हो जाएगा। और मेजोरिटी कहाँ होंगे जाके? स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम। तीनों मैकेनिज्म से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ अमाउंट ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन और कुछ अमाउंट ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड। सारा का सारा फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड, सारा का सारा ग्लूकोज, सारा का सारा गैलेक्टोज एंड मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आप ये भी याद रखना, जब ग्लूकोज में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इट इज कपल्ड बाय सोडियम आयन। आपने पढ़ा होगा ना कि एक ये आपके पास कोई भी प्रोटीन है, एक चैनल है और इससे कोई दो चीज एक ही साइड में जा रही है। अगर एक ही साइड में जाएंगे तो उनको सिम पोर्टल कहते हैं, अलग अलग साइड में जाएंगे तो उनको एंटी पोर्टल कहते हैं।
या दो चीज़ एक साथ ट्रांसफ़र हुई तो उसको को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो को ट्रांसपोर्टेशन होता है विद सोडियम आयन। तो शायद आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि पहले सोडियम, एक आपके पास कोई एक चैनल है, उसका नाम है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। तो इस चैनल से सबसे पहले सोडियम आयन आता है। सोडियम आयन आ रहा है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाय यूजिंग एटीपी। सोडियम आयन के आने की वजह से एक एनर्जी ग्रेडियंट डेवलप हो गया है और उसको यूज़ करके ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। तो दोनों ही एक्टिव आ रहे हैं, दोनों ही एक डायरेक्शन में आए तो सिम्पोर्ट, दोनों ही एक साथ आ रहे हैं तो को ट्रांसपोर्ट। ये प्राइमरी एक्टिव, ये सेकेंडरी एक्टिव। इतनी चीज़ समझ में आई बच्चों? तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं कि भाई ग्लूकोज का जो भी कार्बोहाइड्रेट है उनका एब्जॉर्प्शन वगैरह कैसे होता है, ऑल द थ्री मैकेनिज्म। अब एनसीईआरटी में जो लाइन होगी मैं वो भी लिख देता हूं, वो मैं दोनों बता देता हूं। एनसीईआरटी में इस साल उन्होंने फ्रक्टोज के बारे में नहीं लिखा है कुछ, उन्होंने लिखा होगा फ्यू मोनोसैकेराइड हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज सोडियम is transported by active transport, some amount of glucose has been and amino acid, amino acid का बाद में पढ़ेंगे, is also transported by facilitated transport or facilitated diffusion. I hope ये 2-3 बार रिवाइज करके I make a concept here, I am able to make you understand. Yes. अब पढ़ते हैं absorption of proteins। जैसे आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं, प्रोटीन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों ब्लड के अंदर ही। तो आप ये भी याद रख लेंगे कि भाई जो फैट है बस वही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, वो सब कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं? लैक्टियल्स और लिम्फेटिक कैपिलरी में। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन हियर, so end product of protein digestion was amino acid, right? और कार्बोहाइड्रेट के जैसे ही जो प्रोटीन्स होते हैं, आई मीन टू से अमाइनो एसिड, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज। अच्छा, यहां पर ना मैं बाद में ये भी बताऊंगा जो जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है वो हेपेटिक पोर्टल वेन से होता हुआ लीवर के पास चला जाएगा, और जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो लीवर के पास ना जाके सीधा हार्ट के पास जाएगा। तो अमाइनो एसिड भी तीनों मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं, फ्यू वाया सिंपल डिफ्यूजन, तो फ्यू मोनोसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, सर्टेन अमाइनो एसिड वाया हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन, क्या कहेंगे उसको? फैसिलिटेटेड, एंड मेजॉरिटी of amino acid by active transport. I repeat it again. जैसे कार्बोहाइड्रेट तीनों मैकेनिज्म से होता है, या मैं कहूं ग्लूकोज तीनों मैकेनिज्म से होता है, ऐसे ही अमाइनो एसिड भी तीनों मैकेनिज्म से होंगे। जैसे ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपली अमाइनो एसिड भी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज की तरह इसका भी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा डेट वुड बी कपल्ड विद सोडियम आयन। और ये कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है बच्चों? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सारा का सारा अमाइनो एसिड भी कहां एब्जॉर्ब हो रहा है? इफ यू डू रिमेंबर, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन साइट होता है जेजुनम। तो इंटेस्टाइन के अंदर अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होते हैं, सर्टेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, सर्टेन बाय फ्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन, सर्टेन बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एंड मेजॉरिटी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट कपल्ड विद सोडियम आयन। सो लेट्स कॉल दैट सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड से कुछ अमाइनो एसिड और कुछ ग्लूकोज, सिंपल डिफ्यूजन से कुछ अमाइनो एसिड और कुछ ग्लूकोज, और मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज एंड मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Who run faster, glucose or galactose? Answer should be galactose, right? Answer should be galactose there. ठीक है बच्चों, अब आता है फैट के एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो अमाइनो एसिड, अच्छा एक और मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूं आपको। चलो, कई बार क्या होता है,
हमने अभी तक जो पढ़ा था कि भाई इवेंचुअली सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड में। कई बार कुछ डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड रह जाते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड रह जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। और हमारा जो इंटेस्टाइनल सेल है, जो एंट्रोसाइट है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, वो उसको पिकअप कर लेता है और एंट्रोसाइट के अंदर ही वो जो डाइपेप्टाइडेज है वो इनको डाइजेस्ट करके इवेंचुअली अमाइनो एसिड पोर करता है ब्लड के अंदर, अमाइनो एसिड इनटू ब्लड। तो आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न कि कुछ डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड एंट्रोसाइट या इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल के अंदर भी डाइजेस्ट होते हैं, वहां पे डाइपेप्टाइडेज होता है। और जो ये वाले डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड है वो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन कपल्ड होते हैं और ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कहीं भी, पर इन केस अगर आप कहीं पढ़ लो, कैसा हमने तो पढ़ा है अमाइनो एसिड के साथ साथ डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आंसर इज यस। सब वो कहाँ से आते हैं? दीज आर द वन जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। उनको कौन डाइजेस्ट करता है? जो आपके एंट्रोसाइट इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर जो भी डाइपेप्टाइडेज होगा वो इनको डाइजेस्ट करता चला जाएगा। और ये जितने भी एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं। दे आर कपल्ड विद हाइड्रोजन आयन, नोट विद सोडियम आयन। एक और बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि देखो आप याद रखना कि भाई जितने भी अमाइनो एसिड हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में होते हैं, मैंने आपको बताया था वो सारे एल अमाइनो एसिड होते हैं। और एल अमाइनो एसिड बॉडी अपटेक करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो भी अमाइनो एसिड बॉडी पैसिव ट्रांसपोर्ट से, सिंपल डिफ्यूजन से अपटेक करता है, वो होते हैं डी अमाइनो एसिड। तो डी अमाइनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में तो यूज नहीं होते हैं, बट दे आर यूज्ड इन सम अदर फंक्शन। आई टोल्ड यू दे आर more than 300 amino acid and non-protein amino acid has been involved in other functions. तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें सिंपल डिफ्यूजन से कौन से, तो आंसर वुड बी डी अमाइनो एसिड, और एक्टिव से कौन से, आंसर वुड बी एल अमाइनो एसिड। ठीक है बच्चों। फिर आपके पास आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जैसे फैट डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत कर रहा था कि भाई फैट डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, लाइपेज को कौन एक्टिव करता है? योर आंसर वुड बी सर लाइपेज को बाइल एक्टिव करता है। फिर बाइल और क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन करेगा, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और हमारा बॉडी तो इमल्सिफाइड फैट ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, हमारा बॉडी इमल्सिफाइड फैट ही डाइजेस्ट करता है। और फैट के एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब उन सबको हमें एब्जॉर्ब करना है। आप ये याद रखिए फैट एब्जॉर्ब होता है बस सिंपल डिफ्यूजन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की अगर बात करें, एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट is monoglyceride plus fatty acid plus glycerol। दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू लैक्टियल्स एंड which vessels are lacteals? Answer is lymphatic capillaries. Answer is lymphatic capillaries। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जैसे या मोनोसेक्राइड और अमाइनो एसिड के जैसे ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा। एंड दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओनली एंड ओनली सिंपल डिफ्यूजन। तो इसके अंदर वो फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, शायद ये एक बॉडी का एडेप्टेशन है, क्यों इतना एनर्जी यूज किया, और सिंपल डिफ्यूजन से होंगे। तो बच्चे कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास लेट से ये एक लैक्टियल है। अगर मैं लैक्टियल बना रहा हूं तो मैं ये स्पेसिफाई करता जा रहा हूं हर बार कि वो ब्लाइंडली एंडेड है। और ये आपके पास एक इंटेस्टाइनल सेल है एंटेरोसाइट, और उसके अंदर ये हो गए आपके माइक्रोविलाई। ठीक है। और ये हो गया ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इस ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर कुछ मोनोग्लिसराइड है और दो तरह के फैटी एसिड हैं, कुछ लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं
कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड मैं एल लिख रहा हूं तो लॉन्ग चेन, फैटी एसिड शॉर्ट चेन और ग्लिसरॉल है। अभी जितना भी मटेरियल है, चाहे वो मोनोग्लिसराइड हो, चाहे वो फैटी एसिड लॉन्ग चेन हो, फैटी एसिड शॉर्ट चेन हो या ग्लिसरॉल हो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग insoluble in water, fatty acid and glycerol being insoluble in water cannot be directly absorbed by intestinal mucosal cell। तो इनको सॉल्युबल करने के लिए कुछ बाइल सॉल्ट, कुछ फॉस्फोलिपिड और कुछ कोलेस्ट्रॉल, आई मीन टू से जो भी बाइल का कंपोनेंट है, वो चाहे फॉस्फोलिपिड हो, बाइल सॉल्ट हो या कोलेस्ट्रॉल हो, वो सब का सब कवर करने शुरू कर देता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड को। तो एक स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर फैटी एसिड भी है, ग्लिसरॉल भी है और मोनोग्लिसराइड भी है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड, और वो कवर्ड है फॉस्फोलिपिड और बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल से। उसको बोलते हैं मिसेल। तो व्हाट इज मिसेल? Micelle is simply monoglyceride and fatty acid incorporated with bile component. And which bile component? Phospholipid, bile salt एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो मिसेल होता है जो ल्यूमन में बना है, ये कहां बना है? ल्यूमन के अंदर। इट इज पिक्ड अप बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल। लेट्स से दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ दैट इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल। एंट्रोसाइट का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये मॉलिक्यूल आपके पास आया है मिसेल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मिसेल को ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? ये मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, ठीक है। और ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड आपस में कंबाइन होने शुरू हो जाते हैं। तो लेट्स से खूब सारे फैटी एसिड थे, मोनोग्लिसराइड था, एक मोनोग्लिसराइड के साथ दो फैटी एसिड कंबाइन हुए तो क्या बन गए? वो ट्राइग्लिसराइड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है ये फैट मॉलिक्यूल का नाम होता है। और इस ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल के साथ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाता है, तो ये बन गया लाइपोप्रोटीन। दिस इज लाइपोप्रोटीन, और इस मॉलिक्यूल का नाम होता है काइलोमाइक्रोन। एंड दिस काइलोमाइक्रोन इज पिक्ड अप बाय लैक्टियल्स। जो काइलोमाइक्रोन होता है वो 150 माइक्रोन्स का होता है और व्हाइट इन कलर होता है एक्चुअली। तो दिस इज पिक्ड अप बाय लिम्फ कैपिलरी और इसको बोलते हैं लैक्टियल, ठीक है। दोबारा बताता हूं। What I am telling you कि भाई जो फैट होते हैं, फैट ना तो इजिली एब्जॉर्ब होते हैं और ना ही इजिली डाइजेस्ट हुए थे। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग insoluble in water cannot be, water as well as blood cannot be picked directly by the enterocyte of intestinal mucosa. To make this possible कि इनका एब्जॉर्प्शन हो सके, जो बाइल कंपोनेंट है वो आके कवर कर लेते हैं मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स को। मोनोग्लिसराइड इज अ मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये याद रखेंगे। तो कुछ फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड आपस में कंबाइन हो गए विद बाइल कंपोनेंट, वो बन गया मिसेल। और मिसेल को कौन पिकअप करता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उस मिसेल को ब्रेक डाउन करता है, और मिसेल के ब्रेक डाउन होने की वजह से मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड अलग अलग हो जाएंगे, और मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड कंबाइन करते हैं विद द रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 फैटी एसिड और एक मोनोग्लिसराइड क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड, विच इज अ फैट मॉलिक्यूल।
और ट्राइग्लिसराइड के साथ अटैच होता है एक प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन प्लस ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन प्लस फैट मॉलिक्यूल इज काइलोमाइक्रोन। तो एग्जैक्टली जो काइलोमाइक्रोन होता है उसका डेफिनेशन होता है काइलोमाइक्रोन, इट इज डिफाइंड एज ए lipoprotein synthesized by एंट्रोसाइट। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि फैट जो है वो किस फॉर्म में पिकअप करता है एंट्रोसाइट और इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, आपका जवाब होगा मिसेल। और किस फॉर्म में वो पोर होते हैं इनटू लैक्टियल, आपका जवाब होगा काइलोमाइक्रोन। ठीक है बच्चों, तो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फैट कभी ब्लड में नहीं जाता है, वो लैक्टियल्स में जाता है, उनको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी और लैक्टियल, राइट। फैट सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। एंट्रोसाइट पिकअप करती है इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, एंट्रोसाइट पिकअप करती है इन फॉर्म ऑफ मिसेल। एंट्रोसाइट का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिसेल को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ लाइपोप्रोटीन विच वी कॉल काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन पोर होता है इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी और लैक्टियल। और लैक्टियल इज नॉट ए पार्ट ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये जो फैट है ये सीधा नहीं जाता है लीवर के पास, दैट वुड बी डायरेक्टली पोर्ड इनटू द वेन्स। लैक्टियल वुड इवेंचुअली ओपन इनटू लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक वेसल गोज इनटू लिम्फेटिक डक्ट गोज इनटू वेन्स। तो सीधा का सीधा वेन्स में चला जाएगा, हार्ट के पास जाएगा और फिर बाद में कभी जाके लीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो फैट सिंपल डिफ्यूजन, अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट बाय ऑल द मैकेनिज्म। मिसेल और काइलोमाइक्रोन का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा आई गेस। फिर कुछ और न्यूट्रिएंट जो है अगर उनका डिस्कशन करें, आप प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो भी डाउट आ रहा है तो यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप, और ये आज ही कंप्लीट कर लेना है, डोंट लीव इट फॉर द फर्दर थिंग्स। ठीक है, और डू डिस्कस डाउट। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अक्सर यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। उसके बाद बच्चे आप ये याद रख लेंगे, जो भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है बाय ऑस्मोसिस, राइट। आपके पास जो मिनरल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आते हैं। लाइक क्लोराइड आयन, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट से आते हैं। ठीक है, विटामिन्स वगैरह जो है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो पास कर जाती है। विटामिन B12 के लिए लिखना जरूरी है। विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है इलियम में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसको चाहिए होता है एक इट इज फैसिलिटेटेड बाय केसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर बनाया था आपके स्टमक ने, इंट्रेंसिक फैक्टर, जो स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल थी उन्होंने कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर बनाया था, और ये होगा तो ही विटामिन B12 एब्जॉर्ब होंगे। कुछ विटामिन B12 हम अपने बॉडी में खुद बनाते हैं बाय द बैक्टीरियल एक्शन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ना मैं पहले साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन के हिसाब से पूरा का पूरा माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन NCERT वाला चार्ट बना देता हूँ, और फिर ये क्विक डिस्कशन करके आई एम गोइंग टू फिनिश दैट थिंग। तो लेट मी मेक ए चार्ट, लेट मी मेक ए कंप्लीट चार्ट ऑफ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एट सर्टेन प्लेसेस। नहीं, उस चार्ट से पहले ना मैं एक चीज़ बनाना चाहूँगा आपके लिए। उस चार्ट से पहले मैं 2 एंट्रोसाइट बना देता हूँ यहाँ पर। लेट से ये अब रिवीजन वाला पार्ट ही है एक्चुअली, जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज कर रहे हैं। ये एक एंट्रोसाइट है, ये उसकी माइक्रोविलाई है, ठीक है बेटा, और ये दूसरा एंट्रोसाइट है, ये उसकी माइक्रोविलाई है। और लेट से इस एंट्रोसाइट के नीचे मैं शो कर रहा हूँ एक ब्लाइंडली एंडेड कैपिलरी, दिस इज योर लैक्टियल और लिम्फेटिक वेसल, और इसके नीचे शो कर रहा हूँ मैं एक ब्लड कैपिलरी, दिस इज योर ओपन एट बोथ एंड। यहाँ पर आगे आपके पास सबसे आगे गैलेक्टोज फॉलोड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। गैलेक्टोज A for एक्टिव,
ग्लूकोज मेजोरिटी एक्टिव, सम फैसिलिटेटेड एंड सम बाय सिंपल डिफ्यूजन. फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड. Easy to remember. Glucose is coupled by which ion? सोडियम आयन. फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे अमाइनो एसिड. लेट्स से दीज मॉलिक्यूल्स आर अमाइनो एसिड. जो डी फॉर्म है वो कैसे आएगा आपका? सिंपल डिफ्यूजन. और जो एल फॉर्म है वो कैसे आएगा? एक्टिव. और इट इज आल्सो कपल्ड बाय सोडियम आयन, तो ये भी सेकेंडरी हो गया. और कुछ आपका फैसिलिटेटेड भी आ जाएंगे. कुछ एल फॉर्म, सर्टेन एल फॉर्म विच आर आल्सो कमिंग फैसिलिटेटेड. तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे पहले जाएगा वो कौन सा होगा? गलेक्टोज. सेकेंड ग्लूकोज, थर्ड फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड, वो सारे के सारे कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं? ब्लड कैपिलरी के अंदर. ठीक है बेटा. फिर ये हो गया मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड. और किससे कवर है? ये बाइल कंपोनेंट से. लेट्स से ये कोलेस्ट्रॉल है, ये फॉस्फोलिपिड है यहां पर, और इधर बाइल सॉल्ट है. व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल हियर? मिसेल. एंड मिसेल इज पिक्ड बाय दिस थिंग. व्हाट इज दिस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And this endoplasmic reticulum convert micelle into a lipoprotein chylomicron, and that chylomicron has been put there. सोडियम क्लियर हो गया. कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे कैसे आते हैं? एक्टिव, ब्लड में जाएंगे. क्लोराइड पैसिव, और सिंपल डिफ्यूजन ये भी ब्लड में जाएगा. जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो आपका विद फैट एब्जॉर्ब होती चली जाएंगी. वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड गोइंग टू ब्लड. ठीक है. अब वो साइट वाले चार्ट बना देते हैं. लेट अस मेक द चार्ट ऑफ दैट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन. हैव वी डन अप टू हियर? आई गेस यस. वीडियो को रोक के देखते रहिएगा आप साथ साथ. तो लेट अस मेक अ chart here. It would be something like this. Let's say here I am referring site of absorption mouth, second is stomach, third is small intestine, and fourth is large intestine. Yes, in mouth certain drugs which has been put below tongue gets directly absorbed in blood capillaries. राइट. तो माउथ, अच्छा ये तो पढ़ा है ना कि माउथ के अंदर भाई नॉन केटरनाइज्ड एपिथेलियम होती है, और केटरनाइज्ड एपिथेलियम होता तो शायद एब्जॉर्प्शन ना हो पाता. तो क्यों बक्कल कैविटी को नॉन केटरनाइज्ड एपिथेलियम है? क्योंकि कुछ ड्रग वगैरह वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो सबलिंगुअल इम्प्लांट होते हैं. स्टमक के अंदर सिंपल शुगर, अल्कोहल. अच्छा एक और चीज याद रखिए आप, स्टमक में सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब होता है वो अल्कोहल होता है. स्टमक में सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब होता है वो अल्कोहल है, और अल्कोहल जहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. अटेंशन. फॉर एग्जांपल समबडी गॉट 50 ml ऑफ अल्कोहल. तो स्टमक में जब एब्जॉर्प्शन काउंट करते हैं तो सबसे ज्यादा अल्कोहल ही एब्जॉर्ब होता है. लेट्स से 10 ml एब्जॉर्ब हो गया. बाकी चीजें जो भी सिंपल शुगर है, ड्रग है, वाटर है, वो इतना एब्जॉर्ब नहीं होता. और जो सबसे ज्यादा अल्कोहल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा. तो अगर सवाल पूछा जाता है सबसे ज्यादा अल्कोहल एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी आंसर. और स्टमक में सबसे ज्यादा क्या एब्जॉर्ब होगा, तो अल्कोहल शुड बी आंसर. ड्रग लाइक एस्प्रिन,
and water. These all are absorbed in blood capillaries. स्मॉल इंटेस्टाइन की जब बात करते हैं, स्पेसिफिकली जेजुनम, इट इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वाटर एटसेट्रा in blood capillary and lymph capillary. और जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो बच्चों तीन चीज याद रखना, सम वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नो फन इन टेलिंग. तो जो भी खाना खाया वो बाय डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है वो हेपेटिक पोर्टल वेन से होकर जा रहा है लीवर के पास, और जो भी लिम्फ में एब्जॉर्ब हो रही चीजें वो सीधा जा रही है हार्ट के पास. तो आइदर वाया लीवर और इवेंचुअली डायरेक्ट टू द हार्ट वो पहुंच जाती है साइट ऑफ, वो पहुंच जाती है डिफरेंट टिश्यूज तक, और डिफरेंट टिश्यूज पे जाके अब वो कंबस्ट होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एसिमिलेशन. तो अगला लेक्चर में जो रिकॉर्ड करूंगा दैट वुड बी अबाउट एसिमिलेशन एंड सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जीज एंड इजेशन. फिर डिसऑर्डर्स बच जाएंगे, एक लेक्चर हार्मोन का और एक लेक्चर वाइटामिन्स का. ठीक है, लेक्चर देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी पढ़ो, ask doubt if there is any, and then we will be uploading next video. So this is all for this lecture. Thank you. Have a good day. Class is dismissed.